A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of the chapter Marketing Management. In the last video of class 12 Business Studies, we discussed the different important theoretical concept related to the marketing management. In this chapter, we already discussed the three elements of marketing mix, that is a place mix, product mix, and price mix. After discussing the first three component of marketing mix, now we will move to the last element of marketing mix, that is a promotion mix. So before starting the promotion mix, the fourth element of marketing mix, first of all I want to explain the first three element of marketing mix in briefly. Firstly, we discussed the product mix, the first element of marketing mix. In this component, we discussed the three important component of product mix, that is a branding, labeling, and packaging. After that, we discussed the second elements of marketing mix, that is a price mix. In this categories, we discussed the few important theoretical parts, that is what is pricing, what are the pricing objective, and what are the factors which influence the price of the product, that is the factors affecting the determination of the price. As well as in the third and second last component of marketing mix, that is a promotion mix, place mix. In this categories, in this element, firstly we discussed the channel of distribution. There are basically two types of the channel of distribution, the direct channel of distribution and indirect channel of distribution. In the direct channel of distribution, we see that manufacturer directly sold their goods and services to the consumer, whereas in the indirect distribution channel of goods, we can see that the manufacturer provides its product and services to the consumer with the help of intermediaries, like in one level channel, take the help of retailer. In the two level of channel, take the help of manufacturer, wholesaler, retailer, and thereof consumer. And in the last level, that is a three level of channel of distribution, manufacturers serve their product and services to the consumer with the help of agents, wholesalers, and retailer. As well as in this video, in the last video, we already discussed the second important decision covered under the place mix, that is a physical movement of goods. You can see that there are basically few components which are covered in the place mix, that is a physical movement of goods. That is the first one is the order processing, second one is a transportation, third one is a warehousing, and fourth one is a inventory control. So after discussing the first three elements of marketing mix, now we will move to the last and final elements of marketing mix, that is a promotion mix. So before starting the promotion mix, first of all we discuss what is promotion. So the promotion, you can see that in your screen, that is a promotion refers to the use of communication with the twin objective of informing potential customer about a product and persuading them to buy it. So you can clearly see that promotion एक कम्युनिकेशन का एक ऐसा यूज़ होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या सेलर अपने प्रोडक्ट के बारे में पोटेंशियल कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करता है, बताता है, एंड देयर आफ्टर उनको परसुएट करता है, यानी इनहेरेंट मोटिवेट करता है कि दे विल बाई देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. As well as you can see that in the absence of communication, consumer will not be able to know about the product. बेसिकली अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन का absence रहेगा, तो you can see that कि कभी भी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं ले सकता, will not be able to know about the product.
एंड वुड नॉट बी कन्विंस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और वो कभी भी आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी से कन्विंस नहीं हो पाएगा, कन्विंस्ड, और आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट नहीं होगा. सो वी कैन से दैट प्रमोशन इज अ प्रोसेस इन विच द सेलर यूज द कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर informing potential consumer about a product and persuading them to buy it. Yani basically there are basically two objectives. The first one is a informing potential customers and second one is a persuading them to buy it. So after discussing the promotion, now we will move to the promotion mix. What is promotion mix? So you can see that promotion mix consists of all activities aimed at persuading customer to buy the product. यानी बेसिकली प्रमोशन का मतलब यही होता है, उन सारी एक्टिविटीज़ से होता है. यानी प्रमोशन मिक्स में हम उन सारी एक्टिविटी को कंसिस्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम कस्टमर को परसुएट करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें. परसुएडिंग कस्टमर टू बाई द प्रोडक्ट. सो बेसिकली व्हाट इज प्रमोशन मिक्स? इन सिंपली वर्ड वी कैन से दैट promotion mix consists of all the activities aimed at persuading consumer to buy the product. यानी promotion mix में वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर को परसुएड करते हैं. परसुएड मीन्स द इनहेरेंट मोटिवेट करते हैं. इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन एक्टिविटी अंडरटेकिंग टू इन्फॉर्म एंड कन्विंस कस्टमर. यानी इसमें हम दो एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं. फर्स्ट अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड उनको कन्विंस करते हैं कि दे विल बाई देयर प्रोडक्ट. एंड यू कैन सी दैट देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज दैट द एडवर्टाइजिंग. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न एंड अदर मीडिया. यानी एडवर्टाइजिंग में हम वो सारी एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, रेडियोज़ के थ्रू देते हैं, टेलीविज़न या अदर मीडिया के थ्रू भी हम लोग प्रमोशन मिक्स करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं. इन सिंपली बट वी कैन से दैट सेलर अपने प्रोडक्ट का, सर्विसेज को प्रमोट करता है. इट इज़ अ पेड फॉर बाई द सेलर एंड इज़ अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये लाइन याद रखिएगा कि इट इज़ अ पेड बाई फॉर बाई द सेलर. यानी इस प्रमोशन मिक्स को यूज़ करने के लिए या इस एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए जनरली सेलर्स को पे करना पड़ता है. न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है, उसके लिए चार्जेस लगते हैं. रेडियोज़ के लिए, टेलीविजन्स के लिए, एंड अदर मीडिया लाइक मैगजीन में देना हो, लाइक इंटरनेट पे आजकल काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं. यूट्यूब्स पे एडवर्टाइजमेंट कि अगर आप इंटरनेट सफरिंग कर रहे हैं तो यू विल फाइंड ईजली आवर प्रोडक्ट एंड convince to customer to buy such products. As well, it is a non-personal form of communication. Non-personal form of communication is a very important line. So what is non-personal form of communication? इसमें हम personal communication नहीं करते, non-personal, यानी कि इसमें हम general communication करते हैं. You can see that the newspaper advertisement, radio advertisement, television advertisement, which are common for all, और उसमें हम सारी इंफॉर्मेशन सारे कस्टमर्स को एक जैसी प्रोवाइड करते हैं. ऐसा नहीं कि इसमें हम 1-to-1 कस्टमर के साथ इन्फॉर्म करते हैं, नहीं. एडवर्टाइजमेंट में हम लोग नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, यानी कि हम इसमें पूरी पब्लिक को अपने प्रोडक्ट के बारे में सेम इन्फॉर्मेशन एंड सेम फीचर्स के प्रोवाइड करते हैं, उनको सेम लेवल पे इनहेरेंट मोटिवेट करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें. सो उसमें हम पर्सनली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बल्कि हम एट अ लार्ज लेवल पे पब्लिक को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कन्विंस करते हैं. सो यू कैन सी द फर्स्ट, दैट इज़ अ एडवर्टाइजमेंट. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ promotion mix, that is as personal selling. Personal selling, what is personal selling? It refers to the face to face communication between the seller or his representative and the buyer. Personal selling में बेसिकली होता क्या है कि एक बायर होता है और दूसरा सेलर होता है. सेलर या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव वो आपसे पर्सनली कम्युनिकेट करता है और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है और आपको इनहेरेंट मोटिवेट करता है कि आप उसके प्रोडक्ट को परचेस करें. सो यू कैन सी दैट एडवर्टाइजमेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, बट पर्सनल सेलिंग इज़ अ
पर्सनल कम्युनिकेशन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। बेसिकली हम इसमें पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं विद द बायर के साथ। एंड सेल्स पर्सन्स ऑफ एन एंटरप्राइज असिस्ट एंड परसुएड द प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाई द प्रोडक्ट। और इसमें जो सेलर होता है या सेल्स पर्सन होता है, सेल्समैन होता है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोस्पेक्टिव बायर्स को कन्विंस करता है और उसको परसुएट करता है। सो नाउ वी विल मूव टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, दैट इज अ सेल्स प्रमोशन. Sales promotion is a techniques. You can simply see that sales promotion is a technique used by the seller to persuade the prospective buyer to buy the product. In simply word, we can say that it means immediate sales through short-term incentive. सेल्स प्रमोशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम इमीडिएट सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं. सपोज अगर कोई फर्म या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को इमीडिएट सेल करना चाहती है तो उसके लिए वो अपने बायर्स को कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, एंड विच इज़ नोन एज द सेल्स प्रमोशन. लाइक अ सैम्पल्स, उनको फ्री में कुछ चीज़ दे दें, सैम्पल्स दे दें, स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करें, ऑफर्स दे दें, प्राइस कॉन्टेस्ट दे दें, एंड कूपन्स. यू कैन सी दैट such kind of activity adopted by the most of the seller to persuade the buyer to buy the product immediately. Okay, and these are aimed at supporting advertisement and personal selling and are non-recurring in nature. ये भी बात याद रखनी है कि सेल्स प्रमोशन जो है वो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग के साथ साथ होता है. आपने कभी कभी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, उसमें आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्काउंट्स के बारे में, फ्री ऑफर्स के बारे में, कैशबैक ऑफर के बारे में, प्राइस कॉन्टेस्ट के बारे में या कूपन के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन पता किया होगा या मिला. वैसे ही अगर आप किसी सेलर के पास जाते हैं अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, किसी प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर्सनल सेलर भी आपको इन सारे इंसेंटिव के का कह सकते हैं इंसेंटिव दे के, इन सारे चीज़ों का आपको लालच दे के आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको परसुएट करता है, यानी इनहेरेंट मोटिवेट करता है. एंड जनरली ये जो सेल्स प्रमोशन होता है वो नॉन रेकरिंग नेचर का. नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब ये होता है कि ये सारी एक्टिविटी कंपनीज बार बार नहीं करती है, यानी वो आपको बार बार डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करती. वो जनरली लिखी होती है कि 99% पे मिलेगा, या 10% ऑफ, 20% ऑफ, या बाई वन गेट वन फ्री, एंड दिस ऑफर इज़ लिमिटेड टू द 31st March 2020. So generally this kind of techniques and incentive adopted by the company for the short term period and as well as for the increasing immediate sale. The fourth element of promotion mix, that is personal relationship. When we are talking about the personal relationship, so it is a very defensive part of the every seller. Basically every company wants to create a public relation, want to create a good relation with the public. So इसके लिए भी कंपनीज क्या करती हैं, गुड रिलेशन बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, अपने पब्लिक के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशन कार्यक्रम या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. सो ये प्रोग्राम्स न सिर्फ कंपनीज की इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि उनकी इमेज को प्रमोट भी करते हैं. एंड एज वेल एज जब किसी कंपनी की इमेज प्रमोट होती है, प्रोटेक्ट होती है, तो यू कैन सी दैट हम उसके प्रोडक्ट को भी अधिक मात्रा में या मैक्सिमम क्वांटिटी में परचेस करते हैं और उसको यूज़ करते हैं. सो द पब्लिक रिलेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन मिक्स. सो व्हाट इज़ प्रमोशन मिक्स, व्हाट इज़ पब्लिक रिलेशन? इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम. इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज. यानी जनरली पब्लिक रिलेशन जो होता है वो बेसिकली कंपनीज इसलिए अडॉप्ट करती हैं कि वो, या कई तरह के प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज करती हैं ताकि वो अपनी कंपनीज की इमेज को प्रमोट कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो होते हैं पब्लिक की आंखों में, या कह सकते हो पब्लिक के आंखों में, उन सारे प्रोडक्ट्स के प्रमोट भी होते हैं, प्रोटेक्ट भी होते हैं. जैसे सपोज मैंने अपनी कंपनी को के लिए कह सकते हो कस्टमर रिलेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमने अपने बेसिकली बड़े बड़े कस्टमर्स को बुलाया, उनको उनके लिए अपने सामने डेमो ऑर्गेनाइज़ किया, फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, और उनको कुछ सैम्पल्स भी दिए, एज वेल एज उनसे फीडबैक लिया. कुछ अच्छे कस्टमर्स को, कुछ अच्छे होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को मैंने अवार्ड्स भी दिए, तो जिससे मेरा होलसेलर्स, रिटेलर्स और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना.
जिससे उनके अंदर हमारी कंपनीज़ की इमेज को लेकर थोड़ा प्रोटेक्शन आया कि ये कंपनीज़ काफ़ी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करेंगे, अगर कुछ कमियां निकलती हैं तो ये हमारे फीडबैक को भी वेलकम करना, कहीं कंपनीज़ की इमेज प्रमोट भी होती है। उसके साथ ही साथ न सिर्फ कंपनीज़ की इमेज प्रमोट एंड प्रोडक्ट होती है, एज वेल एज जो उस कंपनीज़ का इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स की भी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं पब्लिक की आंखों में प्रमोट होता है और प्रोटेक्ट होता है। सो यू कैन सी दैट all the promotion mix include the 4 types of the activities, that is advertising, number 2 is a personal selling, number 3 sales promotion, and number 4 is a public relation. So at last we can see that with the help of the elements of promotion mix, that is a promotion mix consists of all activities aimed at persuading consumer to buy the product, and it includes the advertising, personal selling. Advertising is a non-personal form of communication, personal selling is a personal form of the communication system, and number third, sales promotion, that is short-term incentive program, and public relation, that is a program organized for the purpose of creating a good relation with the public. So after discussing the promotion mix, then the elements of the promotion mix, now we will move to the next topic of this chapter, features of advertising. So what is the next topic? That is a feature of advertising. So you can see that the important feature of advertising are the number 1, paid form of communication. सो कम्युनिकेशन एक पेड फॉर्म होता है जिसमें हमें अपने एडवर्टाइज़र्स को जो एडवर्टाइज़र होता है, यानी कि हम लोग एडवर्टाइज़ कराते हैं, हमें अपने एडवर्टाइजिंग मीडिया को यूज़ करने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है फॉर द स्पेस और टाइम यूज टू कम्युनिकेट द मैसेज टू द यूज़र. यू कैन सी दैट पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वाई वी सेड इट, बिकॉज इन द एडवर्टाइजमेंट हमें क्या करना पड़ता है, यानी बेसिकली सेलर्स को, मार्केटर को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में एडवर्टाइजिंग मीडिया को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है. और ये अमाउंट क्यों पे करना पड़ता है? न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन के लिए, स्पेस के लिए, यानी यू कैन सी दैट पेजेस पे स्पेस के लिए. और अगर हम टेलीविज़न या रेडियोज़ में हैं तो उन पे 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट फीचर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, दैट इज़ अ paid form of the communication. The second feature of advertisement, that is a impersonality. Advertisement present the information regarding a product, service or idea is a non-personal form because as no face-to-face context is involved between the seller and the customer. सो यू कैन सी दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन या हम अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विस के बारे में, आइडिया के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता. उसमें एक जनरल वीडियोस या जनरल लेटर न्यूज़पेपर मैगजीन में प्रिंट कराया जाता है या जनरल वीडियो बनाकर उसे न्यूज़पेपर में टेलीविज़न में प्ले किया जाता है या फिर रेडियो में एक जनरल ऑडियो बनाकर रेडियो के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है. सो इसमें आप देख सकते हैं कि कभी कोई ना कोई हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर. सो नाउ द थर्ड फीचर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, दैट इज अ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. What is sponsor? You can see that the different programs are organized by the different sponsor. Like when we are talking about the IPL, when we are talking about the ICC T20 World Cup, when we are talking about the different kinds of charity shows, TV shows which are sponsored by a identified company. So you can see that advertisement company के लिए हमें कभी ना कभी sponsor भी बनना पड़ता है. In sponsor may be an individual or a firm who pays the advertisement, the name or identify the advertisement mentioned in the advertisement. So you can see that उस पूरे एक्टिविटी में, उस पूरे प्रोग्राम्स में आपके जो एड्स हैं, जो आपके एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो प्ले किए जाते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है. सो दे आर बेसिकली 3 फीचर ऑफ द एडवर्टाइजिंग, दैट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 2 impersonality, and number 3 identify sponsor. So after discussing the important feature of the advertisement, now we will move to the merit of advertisement.
you can see that there are various advertisement of the advertisement, because every person are connect with the some kind of the advertisement. आप अपने डेली लाइफ में भी एडवर्टाइजमेंट की इम्पोर्टेंस को फील करते हैं, एंड यू कैन सी दैट कि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू फर्स्टली वी कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर अ लास्ट वेस्ट जियोग्राफिकल एरिया. यू कैन सी दैट अगर हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं टीवी में या रेडियो में, तो एक दिन में कम से कम लाखों करोड़ों लोग हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और उससे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. नंबर सेकेंड is the second merit or role of advertisement, that is enhancing customer satisfaction and confidence. When any company introduce a new product in the market and promotes sale of existing product by arising interest and awareness among the prospective buyer, thereby increasing its sales and profit of the organization. So कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट भी कस्टमर में सेटिस्फेक्शन के लेवल को बढ़ाता है और उनके अंदर में कॉन्फिडेंस जगाता है. सो अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हो या नॉन एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द प्रोडक्ट इन यू व्हेन यू आर यूजिंग एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स. सो आपके अंदर एक अलग सेटिस्फैक्शन और एक अलग कॉन्फिडेंस होता है. बट व्हेन यू आर यूजिंग अ नॉन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, तो आपके अंदर का जो सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू द एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स के कंपेयर में कम होता है. So advertisement help to build the image of the firm and its product in the mind of the buyer. It gives clear direction and builds confidence among the prospective buyer about the quality of the product. So now the third one and very important advantages of the advertisement, that is expressiveness. Expressiveness का मतलब होता है अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करना. एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, अपने इनोवेशन को, प्रोडक्ट को काफ़ी बेटर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं. इफेक्ट स्पेशलिटी इन द टीवी चैनल्स, यू कैन सी दैट द डिफरेंट एड्स विच आर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन. जनरली यू व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ टेक, तो आप सोच ही नहीं सकते थे इस तरह के एड्स भी बन सकते हैं. लाइक यू व्हेन यू सी द एड रिलेटेड टू द फेविकोल, एंड व्हेन यू सी द एड related to the Pepsi and various kind of drinking products. When you see the such kind of that, you cannot believe that, because with the recent development in the art, computer designing, graphics, advertisement can create a special effects and make the message look very attractive. तो आप कुछ specific ads, जैसे मेरे माइंड में फेविकोल का ad काफ़ी इफेक्ट करता है, क्योंकि वो ad हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बियॉन्ड है. तो आप कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के बाद के थ्रू आप अपनी चीज़ों को और अच्छे ढंग से एक्सप्रेसिव कर सकते हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ एडवांटेजेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, तो वी कैन सो दैट इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ द प्रमोशन, because when we are wide reach, when we are talking about the wide reach, a huge expenditure on advertising spread over a large number of people, causing the per unit cost to decline significantly. So you can see that कि जब आप बहुत बड़े लेवल पे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट कराना है, और तब आप एक एक लोगों के पास अगर एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, तो अगर हर एक एक लोगों को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव भी नहीं होगा, और नंबर 2 कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएंगे. तो एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से फ़ायदे का सौदा है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी इंडिया, तो इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि अगर आप एक ऐड भी कराते हैं सपोज़ 1 करोड़ रुपीज़ का, तो आपके 1 करोड़ रुपये जो हैं पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी कम होता है. So the advertisement spread over a large number of people, so causing the per unit cost to decline significantly. अगर हर बंदा आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो कहीं ना कहीं पर यूनिट आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी. So you can see that with the help of advertising we gain a different types of advantages, that is a mass reach. Number 2, enhancing customer satisfaction and confidence. And number 3, that is expressiveness. You can show your ads, your advertisement with full of suspense, full of new technology, and with use of special effects. And number 4, it is an economical.
on the basis of wide reach. Okay, so you can see that there are various advantages and there are various features of the advertising. So now we will move to the last topic of this video, that is a limitation of advertising. So you can see the different advantages of the advertising, whereas there are some limitation related to the advertisement. Just as the number one is less forceful, because you know very well कि advertisement is a impersonal form of communication. It is less forceful as there is a no compulsion on the prospect to pay attention to the message. जनरली अगर हम अपने घर की बात करें तो आपको पता है कि आप अपने एड्स आने के बाद, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो इंटरपर्सनल होता है. ऐसा तो नहीं कोई आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है और आपको वहाँ उठकर नहीं जा सकते, जैसे कि आप पर्सनल सेलिंग के केस में करते हो. अगर आपके घर में कोई सेल्समैन आता है तो अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद भी नहीं है तो भी आपको बैठ के उसकी बात को सुनना पड़ता है. और अगर आप 10-15 मिनट बाद अगर उसकी बातों से सेटिस्फाइड हो गए तो यू कैन बाई दिस प्रोडक्ट. बट एडवर्टाइजमेंट के केसेस में, चाहे न्यूज़पेपर में देख लीजिए, चाहे रेडियोज़ में देख लीजिए, चाहे वो आप फेसबुक पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, तो यू कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय द कंपनी. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलर इट इज़ लेस फोर्सफुल, बिकॉज इसमें हम कस्टमर को ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाते कि वो हमारे एड्स को देखे और उस प्रोडक्ट को फीडबैक परचेस करें. द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज लैक ऑफ feedback, because you know very well it is difficult to evaluate the impact of advertising message as there is no immediate and accurate feedback mechanism available in respect of unexpected advertisement. So you can see that advertisement में ऐसा कोई system नहीं है जिससे आप अपने व्यूअर्स से ये पता कर सकें कि उनको एडवर्टाइजमेंट कितना इफेक्ट किया हुआ है. जनरली जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करते हैं तो उसके बाद के 15-20 दिन में अगर हमारी सेल बढ़ती है, सो हम वी एज्यूम डैट कि हमारे उस ऐड का, हमारे उस एडवर्टाइजमेंट का कोई इफेक्ट पड़ा है. बट इमीडिएट अगर आपको फीडबैक पता करना है अपने एडवर्टाइजमेंट से, तो ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट टास्क है एंड यू कैन नॉट ईजली फाइंड आउट कि व्हाट आर द एग्जैक्टली फीडबैक ऑफ द advertisement. So you can see that the first limitation of advertising, that is the less forceful. The number second is the lack of feedback. The number third is inflexibility. Inflexibility what? Because it is not flexible as per the message once fixed, cannot be altered again and again as per the needs of the customer. Suppose अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है तो आप जब प्रेजेंटेशन नंबर 1 देंगे, उसमें प्रेजेंटेशन नंबर 2 देंगे, प्रेजेंटेशन नंबर 3 देंगे, तो आप अपनी चीज़ों को कभी कभी कुछ चीज़ों को ऐड करोगे और कुछ चीज़ों को उसमें से रिमूव करोगे. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी एडवर्टाइजमेंट, सो इसमें एक बार कोई ऐड बन गया या कोई भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ गया, सो उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, जैसा कि कस्टमर की नीड है. तो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को चेंज नहीं कर सकते. यू नो वेरी वेल, एडवर्टाइजमेंट शूट करने में, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने में, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो वीडियो दोनों हो, आप उसमें चेंज करने में काफ़ी मेहनत लगता है, एज वेल एज उसमें काफ़ी पैसे भी लगते हैं. सो कंपनी कभी भी जनरली अपने एडवर्टाइजमेंट को जल्दी चेंज नहीं करती. एंड नंबर 4 इज़ लो इफेक्टिवनेस. Large number of advertisement has created a difficulty in making the people pay attention to the message. You can see that आज हमारे देश में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं कि उन सारे एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के एडवर्टाइजमेंट को अलग बनाना, इफेक्टिव बनाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. So when we are talking about the general advertisement, so normal people could not pay the attention such kind of advertisement. कुछ एडवर्टाइजमेंट जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होते हैं वहाँ पर हमारे ध्यान जाते हैं, हम बैठ के देखते भी हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी नॉर्मल एड्स, नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट वेयर इज सीन द न्यूज़पेपर, रेडियोज़ और इन द टीवी, सो कहीं ना कहीं उसमें एफिशिएंसी की कमी होती है, इफेक्टिवनेस की कमी होती है. सो वी कैन सी दैट एडवर्टाइजमेंट हैव अ वेरियस काइंड ऑफ benefits for the businessman, but there's some kind of limitation which advertisements prove not helpful in every situation. So advertisement ऐसा नहीं है कि हर समय आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करने में, सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, because it is less forceful, it is a lack of it has a lack of feedback, it is inflexible, it is not flexible, and it
has a low effectiveness. So I hope today we cleared a few important part of the marketing mix. We are talking about in today's video. Uh, we was talking about the we was talking in this video is that the last mix, the last element of the marketing mix, that is a promotion mix. In this video we discussed there are basically four elements of promotion mix, that is a advertising, personal selling, sales promotion and public relation, and thereafter we discussed the feature of advertisement, importance of the advertisement and limitation of the advertisement. So in the next video we will come to the give the information about the personal selling and सेल्स प्रमोशंस. सो आज के लिए इतना ही. आई होप टुडे वी क्लियर ऑल द टॉपिक वेरी इजली.